کہا تھا مجھے زندگی باریہ رہ گیا، کبھی کبھی جب اپنی موج میں ہوتا ہوں تو اکیلا بھی پڑھتا رہتا ہوں. تو وہ شاعر اس سیٹ سے کہنے لگا یہ آرزو کرم اور میں آپ سے کروں، یہ آرزو کرم اور میں آپ سے کروں، یہ بھیک اس کو دیجیے جس کا خدا نہ ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. ان کے شعر اور ان کی مثالیں بہت ہی اعلیٰ. آپ دیکھیں پورے بیان میں ان کی مثالیں اور شعر سنیں ماشاء اللہ بہت پیارا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو اپنے چینل کینی ریک پر. آج ہم جس ویڈیو پہ ریئیکشن دینے والے ہیں اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے اللہ سے مانگو، اور یہ ویڈیو ہے پیر اجمل رضا قادری صاحب کی، جو پیر بھی عالم دین بھی ہیں. ان کا بیان بہت ہی اچھا ہوتا ہے، آپ سنیں اور ڈھیروں نیکیاں کمائیں، ثواب بھی حاصل کریں. تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف. ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر، بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیے گا. چلتے ہیں ویڈیو کی طرف. 1 2 3 اسٹارٹ. ایک بات اور بڑی ضروری ہے اور میرا دل کرتا ہے یہ تقریب روز کی جائے. اخلاق حسنہ کا کمال یہ ہے کہ خوددار رہ کے زندگی گزارے، عزت نفس کے ساتھ. یہ ہاتھ پھیلانا چھوڑ دیں، یہ امیروں کی جیبیں دیکھنی چھوڑ دیں. آپ یقین کریں کبھی بڑی بڑی تکلیف ہوتی ہے. ایک اجتماع میں، ایک پروگرام میں میں گیا تو وہاں قاری صاحب نے ایک صاحب کا پی اے صاحب کو بلایا ہوا تھا. کھانے کی میز پہ بیٹھے تو وہ علماء کو نصیحتیں کر رہے تھے. آپ لوگ یہ جمعہ پڑھایا کریں، آپ کو پتہ نہیں ہے لوگ کہاں چلے گئے، آپ لوگوں کو لڑائے نہیں. میں اس لیے خاموش رہا کہ اب انہوں نے فنڈ بھی دیا ہوگا. علماء بیچاروں کی مجبوری ہوتی ہے، جیب سے کہاں خرچ ہو سکتا ہے، اتنے پیسے نہیں ہوتے. کسی جگہ سے اب وہ نصیحتیں کرنے لگ گئے. آپ لوگ ان کو جمع کریں. کیوں بھلا؟ اس لیے کہ اگر خودداری ہو نا تھوڑے پہ گزارے کا تو پھر ان جیسے لوگوں کی ضرورت نہیں پڑتی. یہ جب ان سے کوئی تھوڑا سا آپ توقع رکھتے ہیں پھر یہ ظلم کرتے. تھوڑی دیر کے بعد پھر کہنے لگا جی میں آپ کو مضمون دیتا ہوں اگلے جمعے کا. آپ نے اگلے جمعے یہ تقریر کر دیا تو پھر میری بھی کئی دفعہ مجبوری ہے. کچھ رگیں ایسی ہیں جو نہیں ساتھ لینے دیتی. وہ رضا کے نیزے کی مار ہے، قیدوں کے سینے میں غار ہے، پھر کسے چارہ جو ہی کا وار ہے، یہ وار وار سے پار ہے. تو کئی دفعہ مجبوری ہوتی ہے نا، ایک سیٹ سے پکڑا کوار کندل اسی اور بھی بوٹیاں جانتے ہیں. تو وہ مطلب اس نے سمجھا کہ سارے ایسے ہیں. کہنے لگا جی پھر بولے آپ وعدہ کرتے ہیں. میں کیا سب ہی کم کر دے کہتا پانڈے بنا دے. میں کیوں ہی بنایا کرو تیار تھا. یہ علماء کے معاملات میں مداخلت بند کر دے. آپ کو کیا پتا کیا موضوع بیان کرنا ہے. آپ علماء کو مشورہ دیں گے جائے کام کریں اپنا. کبھی کسی نے اٹھ کے پائلٹ کو مشورہ دیا کہ جہاز صحیح چلا؟ اس کے پاس ٹریننگ ہے، وہ مرضی کرے گا، جس طرح کا اس کا دل کرے گا وہ چلائے گا. کبھی کسی نے بس کے ڈرائیور کو اٹھ کے مشورہ دیا کہ یہ والا گیئر لگا داڑھی یہ گیئر مانگ رہی ہے. آپ خدا کا خوف کریں. یہ 8 سال مدرسے میں پڑھا ہے، اس کو پتہ ہے اس نے کیسے کر کے دین چلانا ہے. اور علماء نے الحمدللہ علماء یہ جتنی آپ کو کہتے ہیں جی مولویوں نے کیا کیا ہے، تو میں نے کہا مسجدیں کم ہوتی ہیں، قرآن سنانے والے زیادہ ہوتے ہیں. یہ علماء کی محنت ہے اللہ کے فضل سے. ہر مسجد میں اذانیں ہوتی ہے، جمعے کا خطبہ ہوتا ہے، یہ علماء کی محنت. اور پھر میں نے ان سے قبلہ سے بھی عرض کی. میں نے کہا چھوڑ دے آپ ہمیں بلائیں، مسجد والا اسپیکر چلائیں، اب کوئی بندوبست نہ کریں. آپ مسجد کی چٹائیاں بچھائیں. ہم کو محتاج ہے کہ ہمیں بہت زیادہ بندوبست ہوگا تو نوٹ گرے گے تو تب بھی تقریر ہوگی. یہ رسول اللہ کا دین ہے. اگر کفار مکہ کے مجمع میں کھڑے ہو کے اکیلے جناب ابو بکر صدیق مصطفیٰ کی شانیں بیان کر سکتے ہیں تو ہم بھی ہر جگہ کھڑے ہو کے بیان کر سکتے ہیں. یہ سب مشکل کام نہیں ہے. تھوڑی نا خودداری، عزت نفس. یہ غریبوں کو مشورہ دے رہا ہوں. چھوڑ دیں آپ چودھریوں کی گاڑیوں کے پیچھے بھاگنا، کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ چھوڑ دیں ان کی پرواہ کریں. آپ ایک ایک بچے کو خود خرچ اٹھائیں.
आप खुद देखें हमने कैसे इनको लेकर के आगे जाना। खुददारी से जिए, इज्जत नफ्स। एक बात मुझे बताओ, इसने हराम का माल कमाया है और रोजाना छोटे गोश्त से रोटी खाता है, वो ज्यादा अच्छा है या जो हलाल खाता है पर अचार से खाता है वो ज्यादा अच्छा है? आप अजीब बात करते हैं मियाँ। मेरे अब्बा जी से एक दफा मैंने पूछा, अब्बा जी आपको पसंद क्या है? कहने लगे जी तो भूख लगी होगी तो यार शाही पसंद होती है, तो नमन लगी होगी तो नखरे ही होते हैं, और दोपहर को भूख लगी हो तो अचार बड़ा चस्का देता है, कभी खा के देखे। शर्त यह है कि भूख लगी हो। चटनी की जो लज्जत होती है वो और होती कोई नहीं। आप मेहरबानी करें, गुड़ से भी रोटी गुजर जाती। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह खुद प्यार से खाना खाया। मैं दोपहर को घर आया स्कूल से तो अम्मा जी ने पूछा, अम्मा जी रोटी है? कहने पुत्र कोई नहीं। तो मैंने कहा मैंने खाना खाना है। तो अम्मा कहने लगी बेटे दो ही हाल है, या तो मैं किसी से कर्ज लूं और तुम्हारे लिए 2 टाइम सालन पकाया करूं, और या फिर तुम सियाने हो जाओ। तो मैंने कहा जी नहीं आप कर्ज नहीं ले, आप बताएं क्या करना है। तो कहने लगी तुम्हारा अब्बा खा के गया अभी अभी प्याज के साथ रोटी, गुजर जाएगी। मैंने कहा आप लाए इंशाल्लाह गुजरेगी, क्यों नहीं गुजरेगी, अलग से गुजरेगी। क्या इसमें अर्ज है? आप अपनी मिट्टी पे चलने का तरीका सीखें। किसी के संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। आप छोटी मस्जिद में गुजारा करें, आप खुददारी से जिए, इज्जत नफ्स हुसैन है जिंदगी का, ये अखलाक है मेरे रसूल पाक का। पढ़ो तिरमिज़ी शरीफ, हजरत सोबान बिन मालिक को सामने बिठा के नबी पाक ने फरमाया सजना तुझ पे प्यार बड़ा आ रहा है, हुजूर हुक्म करे। पर मैं हुक्म जो है कि एक वादा तू मेरे साथ कर, एक मैं तेरे साथ करता हूँ। या रसूलल्लाह हुक्म करे, नबी पाक ने फरमाया तू वादा कर किसी दुनियादार के आगे हाथ नहीं फैलाएगा, और मैं वादा करता हूँ रब तुझे बगैर हिसाब जन्नत अता फरमाएगा। छोड़ दुनियादारों से मांगना, मांगना है तो रब से मांग, रब के रसूल से मांग। आप ये क्या बात करते हैं भाई? वो एक शायर था ना, कभी गुजर रहा था पास से, तो ये शायर नाराज ना हो जाए, मेरा बड़ा अच्छा शेरी ज़ौक है। शायर नाराज, कई दफा शायरों की जो पोजीशन होती है वो काबिल रहम होती है। वो चादर सी ओढ़ लेते हैं बेचारे, और सर्दियों की रातों में भी चौकों पे बैठे रहते हैं। तो ऐसा ही कोई शायर बैठा था, तो एक सेठ गुजरा तो उसने 5 रुपए ना फेंक दिए। वो शायर ने बुलाया, उसने कहा ये क्या है? कहने लगा जी वो मसला ये है कि आपकी हालत बड़ी अजीब थी, तो मैंने कहा चलो खर्चा चल जाएगा। तो उसने कहा उठा अपने पैसे, मेरा तो इश्क में ये हाल है, वरना मैं कुछ सेठों का मोहताज तो नहीं ना। उसने एक शेर कहा था, मुझे जिंदगी भर याद रह गया, कभी कभी जब अपनी मौज में होता हूँ तो अकेला भी पढ़ता रहता हूँ। तो वो शायर उस सेठ से कहने लगा ये आरज़ू करम और मैं आपसे करूं, ये आरज़ू करम और मैं आपसे करूं, ये भीख उसको दीजिए जिसका खुदा ना हो, ये भीख उसको दीजिए जिसका खुदा ना हो। सुभान अल्लाह, इनके शेर और इनकी मिसालें बहुत ही आला। आप देखें पूरे बयान में इनकी मिसालें और शेर सुने माशाअल्लाह, बहुत प्यारा। लश्कर था दाएं बाएं आना जाना, बहनों जमीन पे बैठे थे, मिट्टी के साथ खेल रहे थे। हारून रशीद आया, अस्सलाम वालेकुम बाबा जी कैसे हो? फरमाया बड़ा शुक्र है अल्लाह का। ये शुक्र होता है मजेदार किस्म का। मैं ना मदरसे में लगे हुए थे मिस्त्री, तो एक तालिब इल्म बड़ा परेशान रहता था कि रोटी जो है ना वो इस तरह की पकनी चाहिए। तो मैंने उसको बुलाया खिड़की से, मैंने कहा इधर आ तुझे एक मंजर दिखाऊं। वो मजदूर ना दोपहर को रोटी लाता है, साथ दिहाड़ी लगा होता है ना जो, तो मैंने कहा वो देख मजदूर खाना खाने लगा है। वो अचार 2 रोटियों के बीच रख के लाया है, और फिर टूटियों में बैठ के उसने हाथ धोए, फिर पानी का गिलास भरा, फिर उसने जब रोटी खोली ना तो वो कोने को भी सारा अचार लगा हुआ, और फिर उसने कई दफा बिस्मिल्लाह पढ़ी। और फिर जब वो रोटी खा रहा था, रोटी खा के फिर उसने कोना लपेटा, और उसकी आंखों में रेत थी, पर जब वो शुक्र अदा कर रहा था ना और हाथ बांध के आसमान की तरफ देख रहा था, तलफ्फुज़ तो इतना अच्छा नहीं था उसका, पर उसकी बॉडी लैंग्वेज कह रही थी जो बयान कर रहा है ना वो रूहों से बयान कर रहा है। वो अंदर से आवाज आ रही है अंदर से। ये 300 रुपया शाम को मजदूर को दिहाड़ी मिलती है तो वो 3 दफा हाथ साफ करता है, फिर बिस्मिल्लाह शरीफ कह के पकड़ता है। तो जो खतीब साहब कहते हैं कि वो 35,000 अकाउंट में करा देना, उन्होंने तो कभी बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी। जब आप ऐसे नोट फेंकते हो तो कभी नाथ खा को देखा बिस्मिल्लाह पढ़ते हुए? सवाल ही नहीं पैदा होता। उसको तो पता है कि अब कौन सा शेर है जो बार बार पढ़ूंगा तो उसमें नोट आएंगे, उसको तो पता है। और साथ ये भी कह रहा है कि मैं नबी पाक के तरफ से आता है तो खाता हूँ, तो ये क्यों कह रहा था पहले 25,000 भेजो तो फिर आऊंगा? इसकी क्या जरूरत थी? अगर तू हुजूर के नाम पे खाता है ना तो फिर सेठों से सवाल करने की जरूरत ही नहीं।
मुस्तफा करीम जब देते हैं तो शान के साथ देते हैं और घर बैठे बिठाए भी अदा कर देते हैं, फिर जरूरत नहीं। बहनोल दरा बैठे थे तो हारून रशीद करीब से गुजरा, बाबा क्या हाल है? का बड़ा अच्छा। कहने लगे बाबा कोई हुक्म ही कर दे। तो बाबा जी मुस्कुरा पड़े, कहने लगे तुझे कौन देता है? कहने लगा अल्लाह। तो फरमाया मुझे? कहा अल्लाह। तो बहनोल दरा फरमाने लगे ये तो नहीं ना हो सकता कि अल्लाह हारून रशीद को देता जाए और बहनोल दरा को भूल जाए, ये तो नहीं ना हो सकता। जा अपना काम कर मियां, तू किस चक्कर में उलझ गया? खुददारी से जियो, इज्जत नफ्स, फटे कपड़े पहन के गुजारा करे। खबरदार, बावकार आदमी शानदार होता है, बावकार आदमी शानदार होता है। मुझे एक बच्चे ने वीडियो ला करके दिखाई, आप यकीन करें मैं आज तक उस बच्चे को ढूंढ रहा हूँ। कोई गरीब का बच्चा सड़क पे पेंसिलें बेच रहा था, तो किसी ने उसको कहा, ये इसी वतन की बात, किसी ने उसको कहा ये बेटे 100 रुपया ले लो। तो कहने लगा नहीं मेरे अब्बा ने मना। कराची का वाक़या, कराची का लड़का। उसने कहा पेंसिल की मजदूरी लेना, मिसवाक कराची या लाहौर का, लेकिन पुत्र किसी से 100 रुपया नहीं लेना, फिर मांगने की आदत हो जाती है। फिर इंसान को मुफ्त के दस्तरखान पे मजा आता है। हजरत सालिम बिन अब्दुल्ला बिन उमर, जनाब उमर के पोते तवाफ काबा कर रहे थे, बैतुल्ला का तवाफ कर रहे थे। तवाफ करते करते खाना काबा के दरवाजे के सामने मकाम मुल्तजिम के पास खड़े हुए तो खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरवान आ गया। अस्सलामु अलैकुम के बाद कहने लगा हुजूर मैं गवर्नर हूं मक्के का, कोई हुक्म हो तो बताइएगा। तवाफ मुकम्मल हुआ, खाना काबा के गेट पे कोई हुक्म? तो सालिम बिन अब्दुल्ला फरमाने लगे यार तुझे किस पागल ने गवर्नर बना दिया, किस बेवकूफ ने तुझे ये ओहदा दिया? कहते मुझे भी को मर्द पहली दफा मिला था, मेरे पैरों तक पसीना आ गया, मैं खिदमत पूछने आया तो उन्हें क्लास लगा दी, किस बेवकूफ ने तुझे गवर्नर बनाया? मैंने कहा हुजूर क्या हुआ? कहने लगे तू अजीब आदमी, अल्लाह के घर में आके बैतुल्लाह के सामने खड़े होके रब करीम के घर के दरवाजे के पास आके भी मैं दुनियादारों से मांगूंगा, यहाँ आके भी मैं नवाबों से सवाल करूंगा, चल दे जा। वो कहते मैं कांपने लग गया कि ये किस मर्द से मुलाकात हो गई। यहाँ तो आपको पता है ना, अल्लाह खैर करे, मुसल्ले के नीचे जो मर्जी रख दो, कोई हाल ही नहीं, इल्ला माशाअल्लाह। कहते हैं कि किधर से आ गया तू, चल दे। फरमाते हैं कि मैं ना बड़ा परेशान हुआ। वो खलीफा कहता है मैं वहां से फारिग होकर तो बाहर निकल गया, मस्जिदुल हराम से बाहर, जैसे आज लोग बाब अब्दुल अजीज से बाब फहद से बाहर निकलते, कहते बाहर आ गया, वहां खड़ा हुआ तो हजरत वहां आए। मैंने कहा हुजूर अब तो बैतुल्लाह सामने नहीं, अभी कोई हुक्म कर दें। तो मुस्कुरा पड़े, कहने लगे तुझे बड़ा शौक है तो बता तुझसे दीन मांगू कि दुनिया मांगू? मैंने कहा हुजूर दीन तो आपके पास है, मेरे पास तो दुनिया ही है। और हंसने लगे, फरमाने लगे दुनिया तो मैंने उससे कभी नहीं मांगी जिसने दुनिया बनाई है, मैं तो उससे भी उसके महबूब के दरवाजे की गुलामी मांगता, मैं तो कभी उससे दौलत नहीं मांगने गया, तो तुझसे मांगूंगा? खुददारी, खुददारी, इज्जत नफ्स। मेरे गरीब का मसला ये है कि मेरा अमीर कहता है कि ये रेट ले लेगा वोट दे देगा, गली बनवा लेगा वोट ले लेगा, ना ऐसा करो, खुददारी से। बहुत अच्छी वीडियो थी, जैसा कि आपने सुना, ये वीडियो थी खुददारी पे। तो आपने पूरी वीडियो सुनी भी कि पीर अजमल रज़ा कादरी साहब ने कुछ फरमान सुनाए नबी के, कुछ वाक़ये सुनाए, उस पर मिसालें दी और कुछ अपनी नसीहतें की। उसमें तो मुझे वाक़ये तो बहुत ही अच्छे लगे कि एक वाक़या इनके साथ ही हुआ कि ये महफ़िल में गए थे तो वहाँ कोई साहबका एमएनए आया हुआ था, तो वो आलिम दीन को नसीहतें करने लग गया। ओ भाईजान तूने अल्लाह माफ़ करे पता नहीं कहाँ वक्त गुजार गया, मैंने बन गया तो अपने आप को बड़ा तुरम खान समझ रहा है। आलिम दीन 12 या 8 साल मस्जिद में नबी का दीन, अल्लाह का दीन सीखता है, फिर आगे मिंबर पर बैठता है। ये अंबिया के वारिस हैं, इनको समझाने की ज़रूरत नहीं। मगर आजकल के लोग अल्लाह माफ़ करे आलिम दीन को तो कोई मजाक ही समझ बैठे हैं कि आए दिन मजाक उड़ा लेते हैं, आए दिन उनको कुछ बोलते हैं। तो भाई थोड़ा अल्लाह से डरो, अल्लाह के अज़ाब से डरो, इस तरह ना कीजिए। आलिम दीन की बड़ी इज़्ज़त है, तो एहतियात कीजिए, उसकी इज़्ज़त कीजिए।
दूसरी बात कि ये बोलते हैं आलिम ने किया क्या है। भाईजान, आलिम की कामयाबी आप देखें ना कि आज तक ऐसी कोई मस्जिद नहीं है जिस मस्जिद में अजान ना दी हुई है। ऐसा कोई जुम्मा नहीं है जिस दिन जुम्मा ना पढ़ाया गया है। मस्जिद कम हाफिज़ ज़्यादा है। ठीक है, ये उनकी कामयाबी नहीं तो और क्या है? बताएं ना, ये कामयाबी नहीं और क्या है? आप कभी भी आलिम दीन से नहीं ओहदे में ऊपर जा सकते। आप बाकी दुनियावी तालीम जितनी भी हासिल कर लें, तो आप भी अगर ऐसे लोग देखें जो आलिम दीन का मजाक या बेदबी कर रहे हैं, तो आप उनको खड़ी खड़ी सुनाएं जनाब कि जब आपके माँ बाप का जनाजा पढ़ाना हो और आपका निकाह पढ़ाना हो तो आपको मौलवी ही याद आता है, और आज इसी का मजाक उड़ा रहे। और इन्होंने बात की थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक वाक़या बताया कि एक सहाबी थे, उनको सामने बिठाया कि आप पर कि साहब तुझ पर प्यार बहुत आ रहा है। उन्होंने बोला ज़रूर हुक्म। तो उन्होंने फरमाया कि आज मैं तुझसे एक वादा करता हूँ और तू मुझसे एक वादा कर। अल्लाह हुक्म सरकार। उन्होंने कहा कि कभी दुनियादार से कभी तू कुछ नहीं मांगेगा, और मैं तुझसे वादा करता हूँ कि अल्लाह पाक तुझे बिला हिसाब जन्नत नसीब फरमाएगा। सुभान अल्लाह, क्या बात की उन्होंने। तो ये इन्होंने मिसालें दी समझाने के लिए। और एक और आप तो वाक़या आपने सुना होगा मक्का के गवर्नर का कि हज़रत उमर फ़ारूक के पोते थे, तो उनसे एक गवर्नर जब वो बैतुल्लाह का तवाफ़ कर रहे थे, तो वो मक्के का गवर्नर बैतुल्लाह के गेट पे खड़े होके फरमाने लगा कि हुज़ूर मैं मक्का का गवर्नर, कोई मेरे लायक हुक्म। तो उन्होंने बैतुल्लाह का तवाफ़ करके ख़त्म करके आए। बोले तुझे किस बेवकूफ़ ने मक्के का गवर्नर बनाया? तुझे ये नहीं पता कि मैं अल्लाह के दर पे खड़ा हो के मेरे सामने अल्लाह का घर बैतुल्लाह और मैं तुझसे मांगूँ? चल लौट जा, रहो जा, जहाँ जाना है। तो वो मक्के का जो गवर्नर था, खलीफा था, उसने कहा कि जनाब मेरे तो पाँव में पसीने आ गए। तो वो बैतुल्लाह से बाहर जाके खड़े हो गए। फिर जब हुजूर आए तो हुजूर से फरमाया हुजूर अब तो आप बैतुल्लाह में नहीं है, अब ये हुक्म फरमा दीजिए। उसने बोला अच्छा। उन्होंने कहा अच्छा ये बताओ दुनिया मांगूँ, दीन मांगूँ या दुनिया मांगूँ? उन्होंने बोला दीन तो आपके पास है, मैं दुनिया ही दे सकता हूँ। तो उन्होंने क्या खूब फरमाया कि दुनिया तो कभी मैंने दुनिया बनाने वाले से नहीं मांगी, मैंने हमेशा अपने हबीब की ग़ुलामी मांग ली। सुभान अल्लाह, क्या उनकी ईमान थे, क्या उनकी तालीम थी। अल्लाह पाक हम सबको उनकी ईमान पे, उनकी नसीहतों पे अमल पैरा करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। तो ये सारी वीडियो का निचोड़ है खुददारी। पीर अजमल रज़ा कादरी साहब ने ये जो वीडियो बनाई खुददारी पे कि अल्लाह से मांगो। आजकल के अमीर आपने देखे भी हैं कि 10 रुपये आपको देंगे तो वो जाके पूरे 20 बंदों को बताएंगे उस बंदे ने मेरे से 10 रुपये मांगे थे तो मैंने दे दी, मैं वो पड़े हुए। तो इससे बेहतर वो 10 रुपये तुम ना ही मांगो। कोई चीज़ नहीं है तो ना लो, कोई ज़रूरत है तो अल्लाह से। हज़रत अली के वाक़या आप सुनो, उनका गोश्त खाने का भी दिल करता था, वो कभी गोश्त नहीं लाए। बोला ये मैं अमानत में, अल्लाह गलती को तई माफ़ फरमाए, तो बोला ये मैं क़यामत वाले दिन रख लेता हूँ गोश्त का। मेरे को कोई वाक़या कसाई का तो आप देखें जाके। तो आप कोई नहीं पेट पे पत्थर मान लें और अल्लाह से कहें कि या अल्लाह अपने बंदे की बख्शिश फरमा कि कल क़यामत वाले दिन में जन्नत में बैठ के खाऊँ। तो ये चीज़ है, खुददारी कायम रखो, ठीक है। किसी से कोई मांगने की ज़रूरत नहीं, अल्लाह और उसके रसूल से मांगो और वो नवाजता भी जब ईमान पुख्ता हो जाएगा। तो करते हैं वीडियो का एंड। वीडियो को एंड करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। अपने भाई अवैस कियानी को दीजिए इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफिज़।